Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. In today's session, I've taken up linguistics, and I'm not diving very deep because it is the first lecture of linguistics. I'm only going to talk about basic terms, that too from phonetics and phonology. I'm going to talk about four terms today, basic only: phoneme, allophone, articulation, and morphophonemic. I don't know how much you have done of linguistics earlier. तो आज मैं इसीलिए सिंपल जो अगर आप कुछ नहीं पता लिंग्विस्टिक्स का तो मैं वैसे स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से. ठीक है, क्या है लिंग्विस्टिक्स? लैंग्वेज. हम जब लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं. नाउ लैंग्वेज स्टार्ट्स नॉट विद वर्ड्स. हम सीधा वर्ड्स में नहीं उतर जाएंगे कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ऐसा है, ऐसा क्यों है. नहीं, it starts with sound. And that is why we today dive into this fascinating world of phonetics and phonology. Remember, phonetics अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है. आपको इसको अगर पढ़ना होगा डिटेल में तो डेफिनेटली मैं बाद में करवाऊंगी. It is the science of how we produce, how we hear, and how we organize sounds of language. For example, I'm saying language. Language, it starts with the sound of ल. Phonetics और phonology में हम यही करते हैं. We talk about the sounds of language. ठीक है? Let's begin with the basics. Phonetics सबसे पहले. What is phonetics? Phonetics is the study of speech sounds. What are these speech sounds? B, P, D, K, Schwa. Schwa is the sound of A. Basic जो speech sounds हैं, how they are physically produced and how are they heard. And what is phonology? It looks at how these sounds function within a particular language. यहाँ फोनेटिक्स में तो हम स्पीच साउंड्स की स्टडी कर रहे हैं. फोनोलॉजी में क्या है? ये जो जितने भी साउंड्स हैं ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लेट्स से इंग्लिश में, इनका क्या फंक्शन है या हिंदी में इनका क्या फंक्शन है, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ इट, हाउ दे आर इंटरप्रेटेड. ठीक है, तो फोनेटिक्स इज इक्वल टू साउंड्स इन नेचर. Sounds in nature. And phonology is equal to sound in language system. I hope it is eligible. Sound in language system. अब phonetics और phonology में phonetics और phonology में ये basic terms हैं. phoneme, phoneme, allophones, articulation and morphophonemic. ये क्या है? फोनीम सबसे छोटा यूनिट होता है साउंड का. किसी भी लैंग्वेज में जो मीनिंग को चेंज कर सकता है. Smallest unit. Can you think of an example? B, P. ये छोटे छोटे लेटर्स, ये साउंड्स है ना, प, ब, सबसे छोटा यूनिट है ये साउंड का. All of these small sounds. Now I said smallest unit of a sound in a language that can change meaning. How can these change meaning? Let's put them in a word.
For example, I have a word bat. Bat. Hmm? If I change the smallest unit, b, and make it and replace it by k, the meaning changes? Or now the only difference is the first sound, but it gives us two different words, right? Bat, pat, cat, sat, anything. You understand? That is a phoneme, the smallest unit of sound. So b, p are distinct phonemes in English language. We're talking about English language, okay? Now, here is where it gets interesting. एक phoneme can be realized in different ways. एक ही phoneme को जब हम different ways से realize करें, उसको हम allophone कहते हैं. Let's take the example of a phoneme p. फोनेटिक्स में जब भी साउंड को आपने रिप्रेजेंट करना है तो हम ये स्लैश लगा के साउंड को लिखते हैं ताकि आपको पता चल सके ये साउंड की हम बात कर रहे हैं, प साउंड की बात हो रही है. अब आपने सुना होगा, दो वर्ड्स आपको देती हूं. एक है पिन और दूसरा है स्पिन. दोनों में प साउंड यूज हो रहा है. जोर से बोल के देखो, पिन, स्पिन. Do you think that the sound produced in both words of p is different, a little bit different? It is. जब आप पिन बोल रहे हो तो पिन एस्पिरेटेड है, मतलब पिन आपको लगेगा कि अच्छा सांस, एक पफ ऑफ एयर आ रहा है, यू कैन फील दैट पफ ऑफ एयर. पिन. जब आप स्पिन बोल रहे हो, इट्स अनएस्पिरेटेड. एंड दीज आर टू एलोफोन्स ऑफ द सेम फोनीम. प के ही दो एलोफोन्स हैं, एक एस्पिरेटेड एक अनएस्पिरेटेड. पिन, स्पिन. जब आप स्पिन बोलते हैं, स्पिन बोल रहे हो, तो एक अनएस्पिरेटेड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो जैसे कि जब हम स्पिन बोल रहे हैं तो थोड़ा सा एच का साउंड आपको सुनाई देगा, तो उसको हम एलोफोन को रिप्रेजेंट करना है तो हल्का सा ऐसे एच आप ऊपर लगा सकते हो. तो एलोफोन्स क्या है? साउंड वेरिएशंस, वो मीनिंग चेंज नहीं करते. Sound variations, they will not change the meaning. They are variations of one phoneme. ठीक है. अब आता है तीसरा पार्ट, articulation. Articulation refers to how and where do we produce speech sounds in the vocal tract. देखो, कोई भी आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, प, ब, ल, आप कोई ना कोई चीज यूज कर रहे हो अपने माउथ में या वोकल ट्रैक्ट में टू प्रोड्यूस दीज साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर सेइंग ब, what are you using? You are bringing both upper and lower lip together and then you are saying b. Same goes for p. But when you say l, then you're not using your lips. What are you doing? You're bringing your tongue. The tongue, you're bringing it to the upper side. L, it towards your upper teeth. है ना? इसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं कि हम कैसे कोई भी साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. ना डिफरेंट प्लेस और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं.
place and manner of articulation. It can be bilabial, it can be dental, आई थिंक नाम से थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा, बाइलेबियल, डेंटल, एल्वियोलर, एल्वियोलर, प्लोसिव, फ्रिकेटिव्स, नेजल साउंड्स एटसेट्रा. अगर आपने ये मुझे बता देना, डिटेल में करने होंगे तो आई ब्रिंग इन अ डिफरेंट वीडियो. कर सकते हो अपने आप से तो फाइन. I'll give you 2-3 examples, however. I gave you an example of p. P, b. Bilabial. Both the lips are being used. तो जब भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में बोथ योर लिप्स आर बीइंग यूज्ड एंड देयर इज अ बर्स्ट ऑफ एयर, एकदम रोक रहे हो पहले सांस को और फिर अचानक से छोड़ रहे हो. प, ब, दैट इज बाइलेबियल. ट की बात करते हैं. द साउंड ऑफ ट. ट एल्वियोलर प्लोसिव साउंड है, मतलब द टंग टचेस द रिज विच इज बिहाइंड योर टीथ. इट इज नॉट टचिंग योर टीथ, टीथ के पीछे. ट. सो एल्वियोला बोलते हैं इसको, एल्वियोलर प्लोसिव. So examples of different sounds you can take with what is the place of articulation, what is the manner of articulation. Dental, जब आप टंग को डेंट ऊपर के टीथ से टच कर रहे हो तो वो साउंड्स को डेंटल बोलते हैं. ओके, नेजल साउंड्स जैसे कि अंग, वो हिंदी में हमारा अंग होता है. फिर कुछ साउंड्स हम पीछे से प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ह, ग, क. तो ये साउंड्स. So by learning the articulatory phonetics, we understand the physical reality of language. Clear? Next देखते हैं. So next is morphophonemic. Morphophonemics is where मॉर्फोलॉजी मीट्स फोनोलॉजी. अभी तक हमने मॉर्फोलॉजी नहीं किया है, नेक्स्ट में हम मॉर्फोलॉजी में जाएंगे. अभी हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन ये एक जॉइनिंग पॉइंट आता है जहां पे मॉर्फोलॉजी मीट्स फोनोलॉजी. इट स्टडीज हाउ मॉर्फीम्स. मॉर्फीम्स क्या होते हैं? जैसे फोनीम हमने देखा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, मॉर्फीम होता है यूनिट्स ऑफ मीनिंग. तो इसमें हम मॉर्फोफोनेमिक के में क्या देखते हैं कि किस तरह से जो मॉर्फीम्स हैं चेंज देयर प्रोनाउंसिएशन इन डिफरेंट फोनोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स. एग्जाम्पल, सफिक्स है जैसे स, एस वाला सफिक्स यूज करते हैं. कैट, कैट, कैट्स. डॉग, दोनों वर्ड्स को प्रोड्यूस करो, बोलो कैट्स और फिर बोलो डॉग्स. हम सफिक्स सेम यूज कर रहे हैं, बट द साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट. कैट्स में हम स का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जब डॉग्स ज, तो ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. हॉर्सेस, हॉर्सेस, इसमें इज का साउंड प्रोड्यूस कर. तीनों पे डिफरेंट है, सेम मॉर्फीम है लेकिन तीन डिफरेंट साउंड्स है. मॉर्फीम क्या है? ये यूनिट्स ऑफ मीनिंग, छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ मीनिंग. जैसे गो एक मॉर्फीम है, गोज डिफरेंट हो गया, छोटा लेकिन.
a word that can stand on its own, उसमें कोई suffix नहीं है, prefix नहीं है, ठीक है. So understanding morphophonemics helps us what? How? It helps us decode how meaning interacts with sounds. So whether it's the precise sound of or 1 minute. So whether it is the precise sound of per, the reason we say dogs and not dogs, or the airflow that turns thought into speech, phonetics and phonology reveal the hidden architecture of language. I hope these basic terms are clear. Let me know in the comment section if you understood, if you would like more of these, and if you would like any of these in detail, let me know. And you can join the MCQ course that we are having, चाहे वो नेट के लिए हो, चाहे वो HPSC के लिए हो, whatever you're preparing for, you can join the MCQ course at this point of time. I wouldn't say that join the full course at this point of time, but revision के लिए MCQs आप join कर सकते हो, which will be definitely be helpful for you. Please share with others if you know anyone around you and help this channel to grow. Thank you, and I will see you in the next one.